Hello, friends, and welcome to today's episode of Learning with Lalit. Thank you for joining us. Friends, as we all know, food, clothing, and shelter remain the three basic needs of human survival. Of these, buying a shelter or home is a very emotional and important decision in our lives. In current scenario, availability of housing finance or home loan plays a critical role towards realization of this goal of buying a home. However, availing a home loan or housing loan is easier said than done. Whenever a customer decides to go ahead with the purchase of a house, availing a home loan, there are many questions when it comes to our mind for which we seek answer before finalizing the decision. So in today's episode, we are going to answer some of these questions which are crucial and very important before making this decision. So stay connected and I can assure you that you will get answer to all your questions by the end of this episode. To answer these questions today, we have on a show Mr. S. Kalyan Ramana here. Mr. Kalyan Raman needs no introduction as I call him the granddaddy or Bhisham Pitama of mortgage finance training programs in India. So please join me and welcome Mr. S. Kalyan Raman here on the show. Hi, welcome Kalyan sir and welcome to this episode of Learning with Lalit. It's a real pleasure to have you here and so welcome to the show. Thank you, Lalit. It's a pleasure at my end also. Okay, sir. I have known you for a long time now. In fact, I must confess to the viewers that I started my mortgage career under your training program. So back in 2006-07. So, that was a 4-day training program that embarked my journey to the world of mortgage and housing finance, career. So just for the benefit of viewers, sir, so would you like to give a brief introduction of yours? Sure. Thanks. Thank you for kind words, Lalit. So nice of you. It was a mutual journey for both of us. Even I had started off my training, full-fledged training life in the mortgage business during that time. So let me briefly give you an introduction about myself. Basically, I'm a management graduate and I started my career in a hardcore sales role in the FMCG sector, largely in the dairy industry. And I worked with the National Dairy Development Board. And I worked with at Gujarat with the Dairy Board, and then I moved on to Mother Dairy Delhi, where the ice cream project which has been launched. I was part of the initial team which has shaped the whole structure of this program. Post that, I moved on to IIM Ahmedabad as a research associate and spent 4.5 years. And then I came back to the industry and started my journey. And that journey started with the housing finance sector. I joined a company called Guru Finance. Today, people talk about affordable housing as a new game, but truly speaking, Guru Finance was one of those housing finance company promoted by HDFC and IFC Washington and Aga Khan for Economic Development. All these people had come together and promoted a rural housing finance company. So I was there as a corporate planner and then moved on my career into business. I was area manager, regional manager, zonal manager, and last posting was a zonal head Maharashtra. And then on I moved on. That's where I learned a lot of mortgage business. If you ask me today, I learned all my things over there where primarily end to end, right from sourcing to collections to preparing the balance sheet of the branch. Everything was done by the branch level. I moved on my career and then moved into ICICI Bank as a national head training as part of the risk and policy area. Spent 4.5 years and that was a beautiful journey. The size of the operations was so amazing that probably on almost 20-21 days in a month, I used to be in training room, doing training with people like you who are fresh to the industry. And probably I would have spent almost like 7,000 to 8,000 people I would have met during those times. And then I moved on my life and went to Middle East and worked as a business head and came back to India and started my consulting in 2010. Since 2010, we are running a consulting company and we are largely into learning development space. We do a lot of training programs for housing finance professionals today. We have an online digital platform called Virtuo Skill. So we provide a blended learning solutions to all housing finance company, banks, MFIs. You talk about it, we are there, all the functional roles. Along with the functional roles, we have gone into soft skills also, and that's how the life has been. That's a great journey, I must say, sir, spanning across 3 decades and moving across industries and across functions. And I see training has been your forte and your passion, and that's how your current venture is also progressing.
So good to know, sir. So the purpose of conducting today's session is to give some insights about the mortgage finance, housing loans from a customer's point of view. So the people who are already associated with this industry, they know quite a bit. But from a customer's point of view, still there are many questions when people want to go for availing a home loan. They have many questions in mind. So this particular episode is an attempt to address those queries to a great extent, sir. And so who better than someone who has spent a good time, more than 2 decades in this industry only, sir. So my first question to you would be, sir. Yes, sir. So my first question to you would be, sir, what are the various steps involved in a home loan process, sir? Let me tell you, the question that you have picked up, and I'm very happy with this episode that you're talked about, is that customer, because it's important to address the customer. That's the most important part of it. Everyone, all of us need to look at that, because housing sector is growing so big now that it has become one of the major part of everybody's life in this country. Yeah. So if you look at from that perspective, I feel that when you look at a customer, there are 2 options for the customer how to go about doing, taking a home loan. The first option the customer, according to me, has is that he goes to a developer, identifies the property, and then, comes to a housing finance company and says that, am I eligible for it? The other option is that actually go to a housing finance company or a bank and get your loan, assessed and find out what is your eligibility. And with that eligibility norms and all the income that you have in your pocket in terms of your down payment that you have or savings that you have, you go out in the market and start searching for the property that matches your requirement in terms of location, in terms of size, all the conditions. Both the options are okay. There's nothing wrong, right and wrong. But if you ask me, the second option is much better, because today all financial institutions are ready to give you in principle sanction, right? So with the sanction letter, with the amount in hand, what happens is that you will not overstretch yourself at any point of time, right? Even if you do something, you will know what to fall back upon, because you would have already calculated your incomes, your savings, everything. So my suggestion to customers always will be that first step, get your approval, sanctions approval done, have in hand, know what are your income levels, what are your savings, what are your liabilities, and then walk out of your home every day or every Sunday and start searching for a property. Okay. So what we are talking about is a pre-approval and then going for finding out the property basis once you have the loan approval. Okay. Absolutely. Okay, sir. So once the pre-approval is done, say a customer has obtained a sanction letter, what are the other steps which would be, customer is required to go through before he gets the final loan check? So ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने बात की थी कि आप पहला सैंक्शन लेटर ले लीजिए, वहीं पे मुझे एक कहना है, आई वांट टू टेल यू दिस पार्ट, कि दिस इज द टाइम व्हेन द कस्टमर विद हिज एंटायर फैमिली शुड सिट टुगेदर. This is a great opportunity to actually get all your documents in your house ready, because most of the time हमें मालूम नहीं रहता कि हमारा इंश्योरेंस कहाँ है, हमारा म्यूचुअल फंड कहाँ है, क्या सेविंग्स है, क्या लाइबिलिटीज लिया है, कितने कार कहाँ के पेपर्स कहाँ है, कुछ नहीं मालूम रहता. So this is the time, actually, if you ask me, the husband wife, if both are as a partner there, or with the children, grown-up children, they are there, you should actually bring them all together at one place and identify all your sources of income, identify all your savings documents first, all your bank statements, and actually to the last pie, you should actually do a income expenses analysis, right? If you do this income expense analysis for yourself as a family, I think you will do a great job, because this gives you an opportunity to understand at what speed you have been running your house, your family, and what speed you should run. ये चीज अगर आ जाता है तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा प्रोविडेंट फंड कितना है, मेरा म्यूचुअल फंड कितना है, मेरा इंश्योरेंस कितना है, या मेरा पीपीएफ कितना है, या इंदिरा विकास में कहाँ डाला. मतलब कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, वो कोने में पड़े रहते हैं, तो आप इकट्ठा करते एक फाइल पे लेके आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. In fact, I would say that even you should estimate what is the gold jewelry available in your hand, what are the all these things, and put a value to it. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको उसको liquidate करना पड़ेगा, but you know that. Plus, this is the time you should look at your children. What is the age of your child? And 5 years down the line, 10 years down the line, 15 years down the line, what are the type of expenses you are going to come? हमने किसी ने सोचा नहीं था कि पैंडेमिक में हम सबको 7-8 महीने के लिए हमें घर में बैठना पड़ा. हालांकि सब लोग बोलते हैं कि 6 महीने का सेविंग्स घर बैंक में लेके जाना चाहिए. मेरे को मालूम नहीं कितने लोगों के पास होगा, राइट?
बट कितने लोग ने SIP में इन्वेस्ट किया मालूम नहीं. बट दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. होम लोन लेने के पहले अपना पूरी इनकम और फ्यूचर एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेनी चाहिए. इनफैक्ट अगर आपके बच्चे को लगता है कि आपको लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाला है या मेडिसिन जाने वाला है या डॉक्टर को फॉरेन भेजना है, उसकी पूरी एस्टिमेट कर लो. उसके बाद आपको मिल जाएगा, हाथ में मिल जाएगा कि व्हाट इज इट. एट दिस स्टेज आई वुड सजेस्ट टू द कस्टमर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर शायद मालूम नहीं होगा कि उनको अपनी क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ले लेनी चाहिए. हर कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर एक को बोला है कि आप अपना क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो हर साल. एक रिपोर्ट निकल जाता है तो आप एक रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा. किसी भी, आज की तारीख में 4 ब्यूरो है इंडिया में, एक हाथ ब्यूरो से निकाल लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आपकी रेटिंग क्या है, आपकी स्कोर क्या है. तो शायद हम कभी ना इसके बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट ब्यूरो क्या है. बट क्रेडिट ब्यूरो इज बेसिकली इज ऑफ इंफॉर्मेशन, एज यू नो, ऑफ ऑल दी लोन्स दैट यू हैव टेकन एंड हाउ वेल यू आर सर्विसिंग दिस लोन्स. इट आल्सो इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड, राइट. कल जाकर अगर मेरे हिसाब से 5-6 साल के बाद इवन आपकी मोबाइल इंश्योरेंस सब कुछ उसमें दिखना चालू हो जाएगा. तो अगर उसमें कहीं आपने कुछ पेमेंट बराबर नहीं किया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या रेट पे मिलेगा. बहुत सारा अंदाज मिल जाता है. तो ये स्टडी करना बहुत कस्टमर को जरूरी है. और यहाँ शुरुआत होने के बाद आप अगर कंपनी के पास जाते हैं, मेरे लिए एक पहला क्वेश्चन होगा ललित कि क्या कौन सी कंपनी में जाना चाहिए. Is that a right question? That's a very valid question, sir. So what you rightly mentioned, पहला आपने बोला कि अपना expenses and income का आप statement बनाओ, so that you know कि even if the time is not good, like the time we are going through right now, you should be able to pay your monthly installments. Once having done that, it's important to know your credit history so that जब आप जाओ फाइनेंसर से मिलो या एजेंट से मिलो तो वो आपको बेवकूफ ना बना पाए. So that is very very important, right, sir? So तो ये तो है. साथ साथ में ये है कि ये है कि आप कितना मतलब मेरा एक हर समय है कि मैं बैंकर हूँ, इतने साल से बैंकिंग किया है, बट थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव हूँ और मैं बोलता हूँ कि अपने पाँव को उतना ही फैलाइए जितना आप चादर का साइज हो. ऐसा ना कीजिए कि आप स्ट्रेच कर लिए और कल जाकर परेशानी में आ गए हो, राइट. दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू से एज अ कॉशन. सॉरी, गो अहेड. So, sir, having finalized the credit bureau, now the next question comes into mind: how to finalize a lender? तो customer को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए before finalizing a lender? Because आज की डेट में mostly banks private भी हैं, nationalized भी हैं, then housing finance company भी हैं. तो how to finalize कि कहाँ से लोन लेना है? ये बहुत शानदार मुद्दा है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप लेके चलेंगे ना, आज की तारीख में एक टेक्निकली देखा जाए तो 1600 संस्थाएं हैं इंडिया में जो लोन्स देने को तैयार है. ओके, अब आप बोलोगे कहां से नंबर आया. ये कोऑपरेटिव बैंक्स में इंक्लूड करोगे, रीजनल रूरल बैंक्स में इंक्लूड करोगे, ये सब इंक्लूड करोगे तो इतनी बहुत सी संस्थाएं हैं. सो लार्जली 100 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, लार्ज नंबर ऑफ 23 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. नाउ द नंबर्स हैव कम डाउन. यू हैव फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, है ना. ये सब बैंक्स हैं. मेरा पहला है कि आपको पहले देखना चाहिए कि आप the evaluation should be based on what has been the customers' feedback about the institutions in terms of their service levels. आपके घर के पास कौन सा संस्था है, राइट, और उसकी सर्विस लेवल क्या है. आपको सर्विस लेवल पे ज्यादा क्वेश्चनिंग करनी चाहिए पहले. अगर सर्विस लेवल पे आप क्वेश्चनिंग करो, आप बैंक्स में चले जाओ, NBFC या HFC में चले जाओ, मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा सा 25-50 पैसे का फर्क पड़ेगा, बट इतना भी ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या एस्टिमेट करना है कि आपको लोन अमाउंट जो चाहिए वो कौन दे रहा है, कितना, क्या वो क्या टेनर के लिए दे रहा है, मतलब वो फीचर. क्योंकि टेनर अगर आप ज्यादा लोगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट कम होगी. तो ये सब फीचर्स देखनी चाहिए कि 30 साल का लोन कौन दे रहा है. अगर आपको उम्र कम है तो आपको देखना चाहिए कि 30 साल का लोन कौन दे रहा है. अगर सब लोग दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए डिनोमिनेटर बन गया कि ये कॉमन फैक्टर हो कोई. अब ऐसा निकाल कर आप 15-20 कॉमन फैक्टर्स निकालनी चाहिए जो कॉमन है, विच इज नॉट अनकॉमन, विच इज इंपॉर्टेंट टू यू, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी ने कोई संस्था होगा जहां पे आपके पिताजी का इनकम, पेंशन इनकम को आपको कंसिडर करना रहेगा. कुछ संस्था करेगी, कुछ संस्था नहीं करेंगी. क्या उससे आपका फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ जाएगा, राइट. तो आई थिंक सो लुक एट दी फर्स्ट द सर्विस लेवल.
Second is the features of the thing and what that feature will give value to you in terms of structuring a loan for yourself in your life. आपने अपने लाइबिलिटी देख ली, आपने इनकम देख ली, आपको फ्यूचर लाइबिलिटी मालूम है, तो ये आने के बाद आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि 10 पैसा कम दे रहा ये नहीं देखना चाहिए. मेरे लिए जो कौन मेरे लिए सक्षम, सुंदर, टिकाऊ लोन स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, ये हमें देखना चाहिए. राइट? इंस्टॉलमेंट मुझे कम चाहिए शुरुआत में, बाद में मुझे ज्यादा चाहिए. वो इंस्टॉलमेंट का ज्यादा चाहिए शुरुआत में, बाद में कम चाहिए. ये बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं. ये कॉम्बिनेशंस कौन दे रहा है? राइट? ये कॉम्बिनेशंस अगर दे रहा है, कोई दे रहा है और उसमें आपको उसमें से फायदा हो रहा है, आई थिंक यू शुड गो टू दैट इंस्टीट्यूशन एंड दैट्स द वे यू शुड स्ट्रक्चर द होल थिंग. दूसरा, सर्विस लेवल जब आता है ना, आज के तारीख में आप गांव में हो या शहर में हो या बड़े शहर में हो, हमें ये चीज जरूर देखना चाहिए कि डिजिटली आपको कौन कौन सी संस्थाएं सर्विस दे रही हैं. आज की तारीख में हम सबके पास स्मार्टफोन है. क्या मेरे स्मार्टफोन में मैं क्या उनका ऐप डाउनलोड कर मैं एक बार लोन ले लिया तो क्या मेरी पूरी जो मुझे इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे और कुछ पेमेंट्स करनी रहेगी या मुझे प्री पेमेंट करनी रहेगी, मुझे कॉन्टैक्ट करनी रहेगी, इस करने के लिए क्या मुझे डिजिटली ये एक्सेप्ट करते हैं? क्या कितने डिजिटली इन लोग हैं, कितने स्ट्रांग हैं? राइट? एक चीज वो देखना जरूरी है. और लास्ट, इट डजंट हाउ पीपल आर, लोग कौन हैं, ये बहुत मैंने करता है. हर संस्था का एक अलग कल्चर है और वो कल्चर पीपल के लोगों में दिख जाता है और कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं जब आप एंटर करते हैं, बात करते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है. आप लोन अपने DSA के थ्रू ले लीजिए, एजेंट के थ्रू ले लीजिए या डायरेक्टली जाइए, ऑनलाइन जाके ले लीजिए. ये सब एक मोड ऑफ लोन लेने की तरीका है. बट आप जब संस्था को जब पकड़ते हो, आप सिर्फ एक आपका फ्रेंड बोला या एजेंट बोला या तो आपको कुछ अच्छा लगा, ऐसा नहीं. आप इवैल्यूएट पहले कीजिए और उसके बाद बोलिए कि हाँ मुझे यहाँ से लेना है क्योंकि ये फैसिलिटीज ये कंपनी दे रही है या बैंक दे रही है जिसके कारण मुझे ये लोन लेना है. राइट? दैट्स द वे आई लुक एट द होल इशू. राइटली सेड. सो माय टेक अवे इज कि सबसे पहले आप सर्विस लेवल डिटरमाइन करें कि कौन से बैंक का या इंस्टीट्यूशन का सर्विस लेवल अच्छा है जहां से आपको मिलेगा. और वो भी इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि ये होम लोन अनलाइक अदर लोन्स लॉन्ग टर्म लोन है, तो वहां पे आपको उसके साथ इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा, कभी इनकम टैक्स के लिए, कभी डॉक्यूमेंट के लिए. कल को आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो एक्सेसिबिलिटी कितनी है उस बैंक की, डिजिटल प्रेजेंस एज यू राइटली सेड. उसके बाद आप अपनी नीड का असेसमेंट करें. एंड आई थिंक कमर्शियल पार्ट जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा लास्ट में आता है बिकॉज वो उतना वेरी नहीं करता है. ये लास्ट में रहना चाहिए. लोग गलती से पहले उसको लेकर उसको इवैल्यूएट करते हैं. मेरा एक बहुत बड़ा गुजारिश है कस्टमर से कि प्राइस को बेसिस करके इंस्टीट्यूशंस को फाइनल मत कीजिए. राइट? सर्विस लेवल पे कीजिए क्योंकि 30 साल 20 साल मतलब यू आर मैरिज है. दिस इज इंडियन मैरिज है ना. एंड इंडियन मैरिज में हस्बैंड वाइफ के साथ ऊपर नीचे उठना बैठना होते रहेगा, सब कुछ होते रहेगा. बट वो कितना दूर तक जाता है, आते हैं, उस पर डिपेंड करता है. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ललित, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि कल जाकर मुझे मेरे घर की मरम्मत करनी है या मुझे पेंटिंग करनी है तो मुझे क्या रिपेयर लोन मिलेगा, क्या रेनोवेशन लोन मिलेगा क्या? और या मेरी बिटिया को फॉरेन भेजना है तो मुझे उसके लिए मेरे प्रॉपर्टी के सामने और थोड़ा सा लोन मिल जाएगा क्या? ये सब चीजें कितनी सहूलियत से मिलती हैं. राइट? ये चीज देख लें. ये सब चीजें पूछनी चाहिए और सिर्फ पूछ के हाँ में हाँ नहीं हिलाना चाहिए. समझना चाहिए कि क्या होता है आज की तारीख में क्योंकि कंडीशंस चेंज होते जाएंगे. या आई थिंक दिस इज वन थिंग I have a very good I have this feeling for customers. नहीं sir, that is very important and the sole purpose of asking this question was कि अभी जो मार्केट में ट्रेंड ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस कंपटीशन है तो द ओनली थिंग व्हिच गेट्स हाईलाइटेड मोस्ट इज रेट. अब कोई 10 पैसा ज्यादा दे रहा है, कोई 15 पैसा कम दे रहा है एंड दैट इज हाउ कस्टमर को पिचिंग होती है और उस बेसिस पे वो डिसीजन भी लेता है विदाउट कैलकुलेटिंग कि वो 0.10% में या 0.20 में उसको कितना फर्क पड़ रहा है. तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो सर्विस प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस एज यू राइटली सेड, वो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना. ग्रेट सर. सो आई थिंक दैट इज अनदर पर्सपेक्टिव व्हिच यू सेड जस्ट प्रोवाइडेड, जो नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है. सर, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स इन योर एक्सपीरियंस व्हिच अ कस्टमर कमिट्स व्हाइल अवेलिंग अ होम लोन? जब होम लोन लेने जाते हैं तो कस्टमर, क्योंकि कई सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं, बाद में कंप्लेन रहती है उनकी, तो क्या मिस्टेक्स कर देते हैं आपके हिसाब से सर?
तो ये मैं मतलब आपको मालूम है कि अब मैं 15 साल से बैंकर्स को ट्रेन करता हूँ। आपने आप इस साइड लाए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस साइड बात कर रहा हूँ, कस्टमर के साथ बात कर रहा हूँ, और ये मेरे बहुत दिल के बगल है। और मैं चाहता हूँ एक दिन मैं एक सेमिनार करूँ कस्टमर्स के साथ और उनको बताऊं कि कैसे करना चाहिए, कैसे इवेलुएट करना चाहिए आपको, ताकि हम बैंकर्स को मिले, अब इनको मिले तो इनको बताएं कि क्या क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला है कि कुछ भी चीज झूठ नहीं बोलने का, कुछ भी चीज छुपाने का नहीं। अगर क्योंकि क्या है कि इतनी ट्रांसपेरेंट होगी दुनिया, इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है, कलयुग में भी, कलयुग से हम थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, और जैसे जैसे हम निकलते जाएंगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में आपके बारे में पूरी सोशल मीडिया में कहानी, अगर मेरा नाम आप डाल दोगे, कल्याण रामन अय्यर डाल दोगे, आपको मेरे 30 साल की कहानी मिल जाएगी। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर मैं कुछ बोल भी दूं, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, राइट। और अगर आप चले जाएंगे फेसबुक में, उसमें से मेरे को डाउनलोड करके 4 दोस्तों से वैसे बात कर लेंगे, बता भी देंगे कि मैं कैसा हूं, राइट। तो जो चीज ये बोल रहा हूं, ये चीज आज के तारीख में बैंकर्स कर सकते हैं और करते भी होंगे और करते भी हैं, राइट। तो आपके पास सिबिल है। आप बहुत सारे कस्टमर्स को मालूम नहीं कि क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ये सबसे पहला संस्था है। इसके साथ साथ अभी हाईमार्क हो गया, इक्विफैक्स हो गया, है ना, एक्सपीरियन हो गया, ये क्रेडिट ब्यूरोज आ गए, 4 ब्यूरो आ गए, जहां पे आरबीआई ने मैंडेटरी बोला कि सभी संस्थाओं को, बैंक्स को, उनकी पूरी जितनी लोन्स लिए हैं आपने और रीपेमेंट हिस्ट्री आपकी जो है वो दे दिया जाए। तो आपका पूरा जन्म कुंडली तो बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होता है। तो बेहतर है कि आप कुछ झूठ ना बोले। पहला सीधा सीधा बोल दें कि मैंने हाँ ये लोन लिया है, या मैं इस मेरे दोस्त के लिए मैंने गारंटी दी है और एक गारंटर में वो फंस गया है और उसके कारण मेरा नाम भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सब चीजें होती हैं। गारंटी के बारे में हम कभी बात करेंगे, थोड़ा सा टच करना, और ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, आज की तारीख में ज्यादा फायदा नहीं है, बट फिर भी काफी लोग फंस जाते हैं उस चीजों पे। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हैं, आप पूरा भरिए। आप ये मत पूछिए कि क्यों इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, उतना आसानी से आपकी लोन क्लियर होगी, उतनी आसानी से आपको रेट कम मिल जाएगी। आप जितना कम लिखेंगे, आपका रेट शायद बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके बाकी सारे नॉर्म्स, अगर मैं जैसे अभी 55 साल का हूं और 55 साल हो जैसी एज होती है, तो नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट फॉर माई सर्विस पीरियड, मैं तो सर्विस में नहीं हूं, बट इवन एज बिजनेसमैन टेनर कम मिल जाती है, तो ऑब्वियसली मेरी ईएमआई कम हो जाएगी, ईएमआई बढ़ जाएगी। But there are other things that because of age, and if I don't have that type of income, and I need more, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो बेहतर होगा कि अपनी सेविंग्स पूरा दिखाइए, राइट। यही मौका है कि आप भी जाके प्रोविडेंट फंड ढूंढिए कि प्रोविडेंट में बैलेंस कितना है, सब पूरा लिखिए, इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा, अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को बहुत अपने अनमोल रत्न जैसे उसको संभालिएगा। ऐसा किसी को भी केवाईसी डॉक्यूमेंट जस्ट फोटोकॉपी किया, उठा के दे दिया, नहीं। आपका दोस्त होगा वो एजेंट या वो बैंकर दोस्त होगा, नहीं। कोई आके बोलेगा कि ब्लैंक शीट में साइन कर जाइए, बिल्कुल नहीं। आपको एक भी डॉक्यूमेंट बिना नाम लिखा हुआ हैंडओवर नहीं करना। आप इतना भी बिजी नहीं हो कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लोगे। क्या आपकी शादी में क्या आपने ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन करके शादी किया क्या? नहीं ना। होम लोन एक शादी है मेरे लिए। मैं यही चीज बैंकर्स को बोलता हूँ, शायद आपको याद होगा कि मैंने ट्रेनिंग रूम में बताया होगा, राइट। यही चीज मैं बोलता हूँ, बार बार ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होती, पैन कार्ड होती है, सब चीजें, उसको साइन कीजिए। पहला आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ कि आप प्री सैंक्शन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड गाँव का है, आप रहते हो शहर में, या आप शहर में ही एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, एड्रेस शिफ्ट नहीं हो गया। अभी आधार बड़ा सिंपल कर दिया, आप ऑनलाइन जाइए, अपना एड्रेस चेंज कर दीजिए, डेटा डाल दीजिए, आपका अपडेट मिल जाएगा, आपको ई आधार आ जाएगा। तो अपनी जितनी एड्रेस प्रूफ है, अपनी फोटोग्राफ्स है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, कभी अपनी शादी की फोटोग्राफ मत दीजिए, है ना। ये सब चीजें क्या आपको डिले करेगा, आपका लोन डिले होगा, क्योंकि संस्था क्या बोलेगी, ये पुरानी फोटो है। तो जितना लेटेस्ट और समय लेके कीजिएगा। भले एक दिन को छुट्टी लेनी है तो लीजिए, क्योंकि आप 30 लाख 50 लाख, कुछ लोग तो 2 करोड़ 3 करोड़ का होम लोन लेते हैं। ये तो एक बिजनेस हो गया, एक अपनी जिंदगी का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जिंदगी है की डिसीजंस हैं। तो थोड़ा सा समय लेकर कीजिएगा। किसी को भी जब भी आप बैंकर्स के साथ या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टाफ के साथ या अपने एजेंट हैं या जो भी कंसल्टेंट हैं आप काम कर रहे हैं, समय लेकर काम कीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंट साइन कीजिए।
कुछ भी ब्लैंक मत कीजिएगा और हर समय पूछिए क्यों मैं ये साइन कर रहा हूं, इससे क्या फायदा मेरे को है, क्या फायदा संस्था को है। क्योंकि हर समय अपनी फायदा नहीं देखनी चाहिए, कभी कभी ये देखनी है कि संस्था को फायदा कुछ नहीं होता है, संस्था की प्रोसेस होती है। अगर प्रोसेस को आप सीधे फॉलो करोगे, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए होती है सब चीज, राइट। तो इससे क्या आपकी लोन प्रोसेस करने में आसानी पड़ जाएगी। जो चीज 10 दिन लगती है वो शायद 2 दिन में हो जाएगी। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि हम 24 घंटे छोड़ दो, हम तो 2 घंटे में आपको दे देंगे अगर सब कुछ बराबर है। तो क्या आप चाहते हैं तो कीजिए, राइट। तो मेरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये दिस इज वन बिग थिंग। द सेकंड इज दैट ना अगर आपको लगता है कि ना हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में हम कभी ना हम जिंदगी में एक ही मकान खरीदते हैं ऐसा सोचते हैं, या मैक्सिमम 2। हमें लगता है कि आज हमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट ही जम रहा है तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट ही लेना चाहिए। अपने आप को स्ट्रेच कर फंस नहीं जाना चाहिए। बहुत तकलीफ होता है क्योंकि मैंने इतनी सारी कलेक्शंस की है, कितने लोगों को मिला है, अच्छे लोगों को मिला है। किसी की श्योरिटी नहीं कि जॉब कब तक रहेगा, या बिजनेस, आज के तारीख बिजनेस भी श्योरिटी नहीं कब तक रहेगा, क्या रहेगा। ये सब चीजें एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल पे लोग कर लेते हैं, बट समय जब गलत जाता है, सही नहीं होता है, तब लगता है कि क्या हो गया है, राइट। तो मैनेज योर फाइनेंसेस, और मेरे लिए हाउसिंग लोन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत आ जाएगी, राइट। ये सबसे बड़ा फायदा है। मैं तो एनकरेज करूंगा कि हर आदमी होम लोन ले, राइट सर। सो आई थिंक होम लोन की इजी अवेलेबिलिटी सर वन ऑफ द रीजंस है जिसकी वजह से कि हाउसिंग में भी बूम आया है, रियल एस्टेट सेक्टर इज आल्सो बूमिंग, और आज की डेट में इवन यंगस्टर्स लाइक इन देयर अर्ली 20s आर एबल टू बाय होम ओनली बिकॉज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। नहीं तो पहले तो वो 50 प्लस में जाके आदमी सेविंग पूरी करता था, उसके बाद जाके घर ले पाता था। So my takeaway from you just said was 2-3 points. One is कि don't overstretch yourself, कि आप जितने की आपका कैपेसिटी आपकी 1 बेड BHK की है, बट आप 2 या 3 ले रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस, या उस टाइम पे आपको लगता है आप मैनेज कर लोगे, वेयरएज उतना बैकअप प्लान आपके पास नहीं है। सेकेंड इज बी प्रोएक्टिव इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि जो चीज एक बार में हो सकती है वो हो जाए, रादर देन प्रपोजल आपका डिक्लाइन हो और आप सेकेंड टाइम में वो सारी चीजें दोबारा से प्रोवाइड करो। So that is there. So I think transparency and knowing your limits, these are the 2 important factors, sir. And ask questions. Right. आप क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलेगा, आप पूछिएगा, आप पूछिए, जितना पूछेंगे उतना आपको फायदा होगा। कुछ भी चीज ग्रांटेड लेके मत जाइए, या मुझे नहीं मालूम तो पूछिए, उससे फायदा होगा आपको। और एक्चुअली वो बैंकर को भी फायदा होगा, क्योंकि उसको भी अगर नहीं मालूम तो पूछ लेगा और समझ लेगा। हाँ, वो भी एक है कि काफी सारे जो हमारे फ्रंट एंड सेल्स फोर्स रहती है उन वहां पे भी नॉलेज गैप काफी रहता है। सो एट टाइम्स उस वजह से भी इश्यूज आते हैं, राइटली सर। यंग होते हैं हाँ सर, दे आर द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। सो और इम्पोर्टेंट थिंग रह गया ललित, कि अगर आप कभी भी किसी को पेमेंट कुछ भी करते हैं, कैश पे आज के तारीख में कोई लेता नहीं है, राइट। और किसी ने कैश मांगा तो नहीं देने का, राइट, नहीं देने का। आपको सब कुछ चेक से देना, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करना ही रहेगा संस्थाओं में, राइट। अगर आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू कुछ और काम करा रहे हैं, जैसे पैन कार्ड बना लिया नहीं रहा, या तो आपने उसको दौड़ा दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, उसके लिए अलग से ले रहे हैं, तो उसको बैंक लोन के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। ये बड़ा क्लैरिटी की होनी चाहिए कि मैंने तो इतना दे दिया, इतना हो गया। नहीं, आप अपनी सुविधा के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच के समझ के कीजिएगा कि क्या है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी संस्था, मतलब हम दोनों काम किए, हम सबको मालूम है इस चीज को, कोई भी संस्था ये चीज कभी नहीं मांगती है। अब कोई बोलता है कि हम इनको पैसा देते हैं, उनको देते हैं, बिल्कुल नहीं। 100% ये आप डंके की चोट में मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी संस्था आपको कैश पे देने के लिए नहीं बोलती है। इनफैक्ट आप जब लोन डिसबर्समेंट होता है तो आप एक साइन करते हो डॉक्यूमेंट कि मैंने किसी को कैश नहीं दिया, जबकि कस्टमर को मालूम भी नहीं होता कि उन्होंने साइन किया पेपर्स को। तो वहां पे मेरा एक छोटा सा है ललित, कि यही बता दूं कि जितनी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं उसकी पूरी एक सेट कॉपी आपके पास रखनी चाहिए आपको, शुरू से लेकर, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी से लेकर अपने डिसबर्समेंट की, लोन एग्रीमेंट की जितनी होती है, हर एक की कॉपी। अगर बैंकर बोलता है कि मेरे पास नहीं है सेकंड कॉपी,
तो रोक कर फोटोकॉपी लेकर अपने फाइल बनाइए। आज भी अगर मैंने आज की तारीख में मेरा सेकंड लोन चल रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे क्यों मैं सिखाता हूं और करता भी हूं, राइट। आपको मेरे एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर पूरी डॉक्यूमेंट पूरी मिलेगी आपको मेरे, राइट, हर एक डॉक्यूमेंट मिलेगी, राइट। और क्योंकि कल जाकर 5 साल के बाद अगर जाकर संस्था के पास पूछोगे, संस्था आपको देगी, पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों खर्चा कर रहे हो उससे, राइट। और क्यों मेहनत कर रहे हो, उस समय पे आपको कहीं सोसाइटी में देनी रहेगी या कहीं देनी रहेगी, आप दौड़ धूप करो, या तो अपने बच्चे को वीसा के लिए आपको प्रॉपर्टी पेपर्स देनी रहेगी, आप दौड़ोगे इधर उधर दौड़ोगे देने के लिए और चिंता में रह जाओगे। तो पहले से आप हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करके रख लीजिए, ये मेरा थिंग। इनफैक्ट मैं हर बैंकर को बोलता हूँ कि आप एक फाइल बनाओ सबके लिए और एक एक कॉपी बनाते जाओ, उनको फाइल करके देते जाओ। ये बहुत बड़ा सेवा होगा कस्टमर की। जी सर, सो दो पॉइंट और ऐड हो गए हमारे। एक तो क्वेश्चंस पूछिए, व्हाट यू सेड, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, पूरी चीज समझिए आगे बढ़ने से पहले। और फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट था इज अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस, आप किसको क्या पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस पर्पस के लिए कर रहे हो, एंड देन बी अवेयर ऑफ व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू आर गिविंग। और एट द सेम टाइम जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसकी अपने पास एक रिकॉर्ड रखिए, जिससे कि बाद में आपको जरूरत पड़े तो यू डोंट हैव टू गो बैक टू द बैंकर, तो आपको नहीं जाना पड़े। राइट सर। सर एक कॉमन चीज आती है, जस्ट टेकिंग अ क्यू फ्रॉम अवर लास्ट पॉइंट, कि जब आप पेमेंट की हम लोग बात किए थे, कि यूजुअली क्या कॉमन चार्जेस हैं जो एक कस्टमर को देने पड़ते हैं। चार्जेस माइट वेरी, बट ब्रॉडली हेड्स जो रहते हैं वो अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेम ही रहते हैं सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कस्टमर्स को। ये हम 2 लेवल पे लेते हैं। कभी अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करना चाहूंगा ताकि एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। बट इन टर्म्स ऑफ फीस जो आप बात कर रहे हो, आमतौर पे सभी संस्थाओं का फीस तो प्रोसेसिंग फी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव फी होती है। कुछ संस्थाएं बोलती कि मैं 2000 प्लस जीएसटी या 5000 प्लस जीएसटी के साथ अपनी फाइल ओपन कर लीजिएगा, हम आपको सैंक्शन की शुरुआत करा देते हैं, और जैसे आपकी डिसबर्समेंट होगी तब आपको बाकी पैसे देने पड़ेंगे, राइट। पहले जमाने में जब मैं ब्रांच मैनेजर था, मैं एरिया मैनेजर था, हम 2% लिया करते थे होम लोन के। आज की तारीख में उतना तो नहीं है, बट लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जाता है वहां पे। बट होम लोन में आमतौर पे 0.5% टू 1% हो सकता है संस्था, डिपेंडिंग अपॉन अफोर्डेबल में हो या आप अफ्लुएंट में हो या प्रीमियम सेगमेंट में हो। बट 0.5 तो आप लेके चलिए कि इतना तो आपका पैसा जाने वाला है। सिर्फ ये है कि संस्था शायद आपको यहाँ से लेगी या तो ऐसा घुमा कर लेगी, तो आपको सोचना कि कैसा देना है, राइट। क्योंकि आप निगोशिएशन करोगे, आप बोलोगे मुझे तो उन्होंने 5000 रुपए कर लिया, आपको 5000 प्लस जीएसटी पे आपकी फाइल ले ली, बट उसके साथ साथ वो लीगल चार्जेस, फिर टेक्निकल चार्जेस ले लेंगे। अब पहला हम जब 1% 2% लेते थे, आप ये समझिए हर कंपनी को खर्चा होती है, और कस्टमर को ये समझना जरूरी है कि आप इंटरेस्ट जो भर रहे हो आप वो पैसे के लिए कर रहे हो, बट ये जो प्रोसेसिंग करा रहे हो लोन की, उसकी जो टाइम जाती है, आज की तारीख में एक फाइल पे मिनिमम, आप बिलीव नहीं करोगे, मिनिमम 16 से 17 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पता भी नहीं चलता है कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट मिनिमम 16-17 लोग होते हैं, और उनकी फीस, उनके ऑफिस का खर्चा सब कुछ होता है, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट लिया जाता है। तो लीगल चार्जेस होंगे, टेक्निकल चार्जेस होंगे। तो लीगल चार्जेस किस लिए लिया जाएगा कि आपकी पेपर्स जो है उसको एक एडवोकेट के पास जाएगा और उन्होंने जाके उसको फिर से इवैल्यूएट करेंगे सब कुछ बराबर है क्या। टेक्निकल वाला इसलिए जाएगा कि आपकी भलाई के लिए देखने के लिए जाएगा, ताकि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो बिल्डर से लिए हैं वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से है क्या, उसके लिए वैल्यूएशन कर लेगा। तो इसके अलावा आज के तारीख में एक फीस आ गया जिसको बोलते हैं सरसाई बोल के, राइट। एक सरसाई फी ले लेते हैं, राइट। ये सब चीजें एक साथ ले लेते हैं, तो आमतौर पे इतना ही फी होना चाहिए। आगे जाके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपकी लोन एग्रीमेंट के लिए स्टैंपिंग कराएंगे, और वो लोन एग्रीमेंट की स्टैंपिंग जो होगी, कुछ स्टेट में 100 रुपए होंगे, कुछ स्टेट में 200 रुपए होंगे या 500 रुपए होंगे, राइट। वो स्टैंपिंग चार्जेस लिया जाएगा। उसके साथ साथ एफिडेविट बोल के साइन करते हैं, राइट, उसकी कुछ पैसे होंगे। बट जितने पैसे लेते हैं संस्था लेती है, बैंक हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी हो या एनबीएफसी हो, आपको बकायदा आपको रिसीट मिलेगा कि या लिस्ट मिलेगा कि हम इतने किए, आपने स्टैम्प का ऐड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने कितना पे किया। तो ये बेस मिनिमम इतना पैसा तो आपको लगता है,
राइट। बट आपके ऑफिस में आकर कैसे, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके ऑफिस में आके हमें आपको मिलना पड़ेगा, तो आने जाने का खर्चा जो है वो इंक्लूड हो जाता है उस पे, तो एक अलग से फीस ले लेते हैं, विजिट चार्जेस ले लेंगे, राइट। ये सब चीजें होगी, तो ये तो आपको देना चाहिए, ये आपके लिए भलाई के लिए है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम सेल्साई के बारे में भी बात करेंगे, इससे उनको क्या फायदा होगा। तो इसमें ब्रॉडली जो समझ में आया सर, अपना प्रोसेसिंग फी है, कुछ इंस्टीट्यूशंस प्रोसेसिंग फी वन गो में ले लेते हैं, एक सिंगल अमाउंट, और कुछ उसको ब्रेकअप करके लेते हैं, लीगल टेक्निकल अलग, लॉग इन फीस अलग, जो कहाँ आजकल बोला जाता है, तो उस तरीके से। तो मेन यही चार्ज है, क्योंकि सरसाई की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक नॉमिनल अमाउंट ही होता है जो आजकल लेते हैं, वो इतना कोई हैवी चार्ज नहीं। इसके अलावा एफिडेविट अगर आपको कुछ देना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन, तो वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है। और जहां तक प्रोसेसिंग फी का है, वो मोस्टली बैंक चेक से या अपना डीडी से लेते हैं, सो दैट्स कैश में नहीं देने का है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, राइट सर। होम लोन इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड आप उसमें काफी टाइम से इन्वॉल्व भी हैं, बट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार कस्टमर्स की कंप्लेन ये आती है कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, वो उनको पता नहीं रहता। उनके लिए अगर उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया तो फिर सीधा चेक निकल के ही आएगा, और जब वो नहीं होता तो कई बार कस्टमर थोड़ा सा परेशान होते हैं कि उनके कमिटमेंट फेल हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज कैंसिल हो जाती हैं। तो वो ब्रॉडली क्या स्टेप्स हैं, अगर सर थोड़ा सा उस पर व्यू दें। तो एप्लीकेशन फॉर्म एक बार अगर मैंने जिस तरह से पहले बताया, आपने अगर पूरी तरह से डॉक्यूमेंट एक एक गिन कर पूरी डॉक्यूमेंट बराबर दे दिया, तो वन सिंगल शॉट में ही जब फाइल अगर लॉगिन हो जाती है, तो हर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बैंक उस हर एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लेते हैं, और कुछ जगहों में थर्ड पार्टी एजेंसीज को भेजकर आपकी इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि आपकी जॉब कहाँ है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, या आपकी डॉक्यूमेंट क्या है, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है, ये सब चीजें वेरिफिकेशन हो जाती है। ये वेरिफिकेशन एक बार हो गया तो इसको हम अंडरराइटिंग बोलते हैं हमारे बैंकिंग पैरेलल्स पे, बट कस्टमर के लिए ये क्रेडिट बोले या तो एलिजिबिलिटी, कितनी लोन एलिजिबिलिटी है, एक क्रेडिट मैनेजर होता है जो इवैल्यूएट करता है और बोलता है कि इतना लोन मिल सकता है बेस्ड ऑन आपके इनकम, एज, या पूछता है कि अगर इतना लोन आपको ज्यादा चाहिए तो और कौन कौन है घर पे और क्या आपकी इनकम है जो आपको छूट गई तो इंक्लूड करें। तो वो बड़ा हेल्प करते हैं आपको आकर कि भाई इस पे हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो एक बार क्रेडिट हो गया, साथ साथ में क्रेडिट होते होते क्या होता है कि दो तरह से डॉक्यूमेंटेशन की चेक होती है कि अगर आपने खुद का मकान बना रहे हैं तो आप पूरी प्रॉपर्टी के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होती है, हर स्टेट का रेवेन्यू रिकॉर्ड अलग होता है, तो आप वो सब डॉक्यूमेंट्स देंगे, लीगल पेपर्स होंगे, सब लीगल पेपर्स के लिए लीगल एडवोकेट के पास वो डॉक्यूमेंट चली जाती है वेरिफिकेशन के लिए, राइट। अगर आप बिल्डर से ले रहे हैं या तो हाउसिंग बोर्ड से ले रहे हैं, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से खरीद रहे हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है कि वहाँ डॉक्यूमेंट सीधा सीधा आ जाता है, या तो बिल्डर एक कॉमन फाइल बोलकर होता है, वो कॉमन फाइल बनाकर दे दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट की अप्रूवल पहले से हो जाती है। बट आपकी जो अपार्टमेंट है या आपकी जो यूनिट है उसकी वेरिफिकेशन फिर भी एक बार कर लेते हैं लीगली कि ये कहीं दूसरी बार तो बेच नहीं जा रहा है, बिका नहीं जा रहा है, तो ये चेक हो जाता है। दूसरा टेक्निकल एक वैल्यूएशन होती है, टेक्निकल ऑफिसर जाता है, ये आज की तारीख में बाहर की एजेंसीज को दिया जाता है काम, वो जाकर चेक करता है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंचा है और कितना पैसा दिया जा सकता है, बिल्डर जितना मांग रहा है उसके सामने कितना देना चाहिए और कितना आपका पैसा आपको रिलीज करना चाहिए। अब ये जब होता है ये भी कस्टमर के सिग्नेचर के हिसाब से ही होता है, उसके बाद कस्टमर बोलकर ही दिया जाता है। अब ये होने के बाद अगर ये सब बराबर हो गया तो फिर क्रेडिट मैनेजर अगर टेक्निकल ने गलती से कहीं बोल दिया कि वैल्यूएशन बराबर नहीं आ रहा है या वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है मुझे, बट ये रजिस्ट्रेशन वैल्यू बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये ऐसा वैल्यू नहीं होता है, तो क्या होगा कि वो एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू के हिसाब से आपकी लोन की एलिजिबिलिटी फिर से बदल जाएगी। अगर लीगल कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट बराबर है बट साथ साथ मुझे और एक डॉक्यूमेंट भी चाहिए जो छूट गया है, मुझे लिंक नहीं मिल रही है समझने में, तो आपको और मांगेगा। तो आप लेकर चलिए कि अगर आपने ये सब कुछ पहले करके रख लिया होता तो आपको समय नहीं लगता है, बट ये होने के बाद आप डिसबर्समेंट पे आ जाता है जहां पे आपको चेक रिलीज होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी तैयार है, सेकंड रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे तो सिंगल ट्रांजैक्शन हो जाती है, अगर बिल्डर केसेस है तो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डर में भी अगर रेडी प्रॉपर्टी है तो इमीडिएटली वन सिंगल चेक में मिल जाएगा। अब जब चेक मिलता है, काफी संस्थाएं क्या बोलती है आप ब्रांच में आइए और ब्रांच में आकर हस्बैंड वाइफ अगर दोनों एप्लीकेंट को एप्लीकेंट है दोनों साथ में साइन करेंगे। कुछ संस्थाएं क्या बोलती है हम डोर डिलीवरी सर्विस देंगे, आपके घर पर आकर हम साइन कर जाएंगे।
अब वो जब साइन करने आते हैं तो आपसे बाकी सब डॉक्यूमेंट जो बची हुई रहती है, जैसे बिल्डर की आपने जो अगर उसको कुछ पेमेंट किया रहता है, पार्ट पेमेंट किया रहता है, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, कस्टम की कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो उसकी रिसीट मांगते हैं, ताकि हमने जो लोन दिया और आपने जो पेमेंट कर दिया दोनों मिलाकर बिल्डर को पूरा पेमेंट गया क्या, ये चेक करने के लिए। अगर वो पूरा नहीं गया तो बिल्डर आपको प्रॉपर्टी नहीं देगा, आप फंस जाओगे, हम भी आपके साथ रह जाएंगे। इसलिए संस्था बोलती है कि हम पूरा चेक कर लेते हैं। एक स्ट्रेट अवे देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से सिर्फ 4 स्टेज है। लॉग इन स्टेज पे पूरी वेरिफिकेशन हो जाती है, सेकंड स्टेज पे क्रेडिट होती है जहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी होती है, उसके बाद लीगल वेरिफिकेशन होती है पेपर्स की, चौथा टेक्निकल वेरिफिकेशन होती है, लास्ट में फिर वापस ऑपरेशंस पे आ जाता है जहां पे चेक की डिसबर्समेंट होती है, बिल्डर के अकाउंट पे जाता है सीधा। अगर बिल्डर से लेते हैं, अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में जा सकता है ये पैसा, अब आप जिस अकाउंट ने दिया या तो आपके कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में जा सकता है ये चीजें। तो ये बेस है। ये होने के बाद ही रियल काम चालू होता है कस्टमर के लिए। फिर वापस कस्टमर को जब आप डिसबर्समेंट कर रहे हैं तो आपको कस्टमर से परमिशन लिया जाएगा कि आप पेमेंट क्या चेक से देंगे या आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देंगे। आज के तारीख में एक नया चीज आ गया, नैच बोलकर, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस आ गया है, तो उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको डायरेक्टली हर महीना कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने बैंकर को दे दिया, सिग्नेचर दे दिया, वो सीधा पैसा ट्रांसफर होकर निकल जाता है। या अगर आपने बैंक चेंज कर दी तो आपको फिर से जाकर देना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। तो आपको जरूर लोन लेने के बाद बार बार मौका रहेगा, मिलने का रहेगा। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसके पास जाना है। ये आपको लिख के रख लेना चाहिए कि कौन सा ऑफिस है या कौन सा एड्रेस है जिसमें मुझे लिखना पड़ेगा, जहां पे मुझे सेवाएं मिलेगी। अब इसलिए मैं डिजिटल की बात कर रहा था कि जितना आपको डिजिटली मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा है, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। सो सर ब्रॉडली जो है कि ललित, एनीथिंग यू वांट टू ऐड और कुछ रह जाता है? सर 6 to 7 ब्रॉड स्टेप्स हैं जो आपने राइटली बताया कि एप्लीकेशन है, देन वेरिफिकेशन, इफ रिक्वायर्ड हमारा पर्सनल डिस्कशन कस्टमर के बिजनेस प्लेस पे हम लोग करते हैं, देन अंडरराइटिंग है। जब एक बार अंडरराइटिंग हो गई, कस्टमर को सैंक्शन लेटर मिल गया, देन उनका लीगल असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट एंड फाइनली डिसबर्समेंट। तो सिंस ये पूरा 6 to 7 स्टेप्स का प्रोसीजर है, इसीलिए टाइम लगता है और कस्टमर्स का यस सर एक रह गया, एक आदमी पीछे छुपा रहता है जो कस्टमर को मालूम नहीं, वो आदमी है कलेक्शन। राइट। जो कभी बाहर नहीं दिखता है क्योंकि वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये जो डिपार्टमेंट है जहां पे आप डिले कर देते हैं या डिफॉल्ट हो जाता है, फिर वो खड़ा होता है, बाहर निकल के आता है और आपसे बात करना चालू करता है। तो कस्टमर को कभी कभी लगता है इनको तो कभी मिला ही नहीं, मैंने कौन है ये, राइट। तो एक कलेक्शन भी एक डिपार्टमेंट है, राइट। वो हमें बता देना चाहिए ललित, ये भी एक कलेक्शन है डिपार्टमेंट, बट बदमाश नहीं है। ये आपके लिए सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं और कस्टमर बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये है डिपार्टमेंट। राइट सर। तो कलेक्शन का सर इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि हम लोग लॉग इन से डिसबर्समेंट तक की ही बात कर रहे थे अभी, और कलेक्शन की जरूरत ना पड़े, पेमेंट आता रहे वो कस्टमर और बैंक दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा है। राइट सर। अच्छा सर, कई बार कस्टमर से कंप्लेन आता है कि उनका कुछ इशू है, मे बी ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस या उसके बाद, तो किसको अप्रोच करें, उन्हें पता नहीं होता। तो उसके लिए क्या रिड्रेसल फॉरम है या क्या हायरार्की उनको फॉलो करनी चाहिए, अगर बता पाए? तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या तो उसकी एक पर्ची आपको मिलती है या तो आपकी पूरी फोटोकॉपी ले लीजिए, तो वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया जाता है, उसकी सर्विस लेवल की स्टैंडर्ड दी जाती है कि फर्स्ट लेवल ऑफ सर्विस कौन होगा, सेकंड लेवल कौन होगा, थर्ड लेवल कौन होगा। पहला तो है कि अगर आप जिससे आप प्रोसेसिंग करा रहे हैं, अगर आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं तो आप कंसल्टेंट को के साथ बात कीजिएगा, बट कंसल्टेंट से इंफॉर्मेशन लीजिए कौन कर रहा है, बैंक की तरफ से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से कौन है, उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ा आसान है, कोई तकलीफ नहीं है ये। आप तो पहला ये चीज है। अगर ये नहीं होता, आप कॉल सेंटर में आप अगर बुक कर देंगे, अपनी कॉल बुक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये CRM, हर बैंक या संस्था में CRM सिस्टम होती है, चले जाती है, टिकट चले जाती है, और नेसेसरीली आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है उनको कि आप इसमें ये स्टेट क्या हुआ। अब एक बहुत अच्छा हो गया कि काफी सारी संस्थाओं ने अपनी एप्लीकेशंस एप्स बना रही है या तो बना चुकी हैं काफी लोगों ने, जहां पे आपको अपना एप्लीकेशन की स्टेटस मिल जाती है, देखने को मिल जाएगी कि आपका स्टेटस कहाँ पे, कहाँ चल रहा है एप्लीकेशन,
राइट। ये आपको इसलिए वाला डिजिटल जर्नी बहुत मजा आने वाला है कस्टमर्स को आगे जाकर। कस्टमर को कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वहीं घर बैठे बैठे ऐप में दिख जाएगा कि वो कहाँ, उनका एप्लीकेशन कहाँ खड़ा है। सेकेंड लेवल है कि ब्रांच मैनेजर को मिले, या तो सेकेंड सीनियर लेवल कौन है उनको पूछ लेना चाहिए। और फाइनली तो हर कंपनी में एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। तो अगर उस कंपनी या बैंक के ब्रांच पे चले जाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल और उसके एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ब्रांच पे लिखा रहता है, राइट। यहीं तक आपको सीमित रखना चाहिए। अगर आप झगड़ा करने बैठे हो तो फिर तो आप रेगुलेटर के पास जाइए, अगर बैंक में तो ओम्बड्समैन के पास जाइए, बट वो जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सारी चीजें अनजाने पे काफी समय गलतियां होती है, और बैंकर्स की तरफ से बहुत समय और कुछ कस्टमर्स की तरफ से भी होती है, राइट। तो इसको मुद्दे को वहीं का वहीं रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जितना कम्युनिकेशन रेजोल्यूशन जल्दी हो उतना अच्छा है, right? That is the way I would look at it. नहीं, अप्रिशिएट इट सर, एब्सोल्युटली। और इसके अलावा जस्ट वांट टू ऐड ऑन कि इसमें आजकल सारे कंपनीज की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो इन केस आपको लोकल ब्रांच से सपोर्ट नहीं मिल रहा, वेबसाइट से नंबर निकालिए, ईमेल आईडी निकालिए और रिस्पॉन्स आ जाता है सर। सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट। उतना पहले एप्लीकेशन फॉर्म का फोटोकॉपी लेके रखिए, आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट सर, राइट। तो सर लोन मिल गया, सब हो गया, अब उसके बाद हम थे तो हम लोग इंडियंस ही, अब सर कुछ तरीके बताइए जिससे कि कस्टमर्स पैसे बचा पाए लोन लेने में, कुछ टिप्स। बहुत बहुत बढ़िया ये चीज है और ये करना चाहिए। और हमें बचपन से, हमें एटलीस्ट मेरे जनरेशन जो है, हमें बताया गया है कि लोन लेना अच्छा नहीं होता है, राइट। आज की तारीख में लोन लेना, कितना ज्यादा लोन मिलता है वो आपकी प्रेस्टीज होती है, राइट। तो पहला तो आप जितना जल्दी लोन क्लियर करें उतना अच्छा है, दैट्स फर्स्ट। अब दो चीजें हैं, एक तो आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं क्या, अगर आप किस ब्रैकेट में, 20% के ब्रैकेट में या 30% के ब्रैकेट में, 10% ब्रैकेट में है, तो उस हिसाब से आप इनकम टैक्स बेनिफिट की बात कीजिएगा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ये बेनिफिट ले सकते हैं अगर दोनों वर्किंग कर रहे हैं तो, एंड दे आर आल्सो प्रॉपर्टी ओनर्स ऑन द प्रॉपर्टी है, तो ये बेनिफिट लेना चाहिए और बहुत अच्छा रहता है ये चीज। अब लास्ट बजट में थोड़ा सा चेंज आया कि विद बेनिफिट, विदाउट बेनिफिट दो अलग स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो कस्टमर्स कैन ऑप्ट कि उन्होंने क्या चाहिए उनको। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि हर समय क्या होता है कि अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको आज के तारीख में मैंडेटरीली आप वेरिएबल रेट पे गए होंगे, या फ्लोटिंग रेट बोलते हैं, वेरिएबल रेट बोलते हैं, तो आपको प्रीपेमेंट करना आप कर सकते हैं और उसमें आपको चार्जेस नहीं लगते। यू डोंट हैव टू पे एनी प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन prepayment of home loan. Some companies say that don't pay more than 3 times of the month, or 3 times a year, or some companies says don't pay more than 2 times or 4 times in a year. जो भी terms हैं वो fine, but what you should do, you can't go and pay every second month, third month. मेरा suggestion है कि अगर आपने 30 साल का लोन लिया और एक्चुअली आप 25 साल का लोन लेने वाले थे, तो डिफरेंस जो 25 और 30 साल के डिफरेंस ईएमआई में जो पैसे बच जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल 100 रुपए, लाख का 100 रुपए, आपने 10 लाख लिया तो 1000 रुपए बच गए। 1000 रुपए उठाकर आप एसआईपी कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आज की तारीख में कुछ भी म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी म्यूचुअल फंड अच्छी कर रही है, या आप डिपॉजिट कीजिए जहां भी आपका कंफर्ट लेवल है, तो आपको जो भी होम लोन रेट है उस रेट से ज्यादा रेट पे रखना चाहिए, बस इतना ही है। अगर आप 6.5 पे लिए हैं या 7 पे लिए हैं तो आपको बेनिफिट 7 के ऊपर मिलना चाहिए। अगर आपने डिपॉजिट 5 पे रखा तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप 14 महीना या 18 महीने के बाद उस जो भी पैसा बच जाता है, विद नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बेसिस पे जितना भी पैसा आता है, कुछ पैसा उठाइए। आपकी बोनस आ रही है तो बोनस का कुछ पोर्शन आप मैंडेटरीली उठाइए। अगर आपको इंसेंटिव्स मिल रही है तो इंसेंटिव का मैंडेटरीली आप जाकर समोसा और जलेबी मत खाइएगा। आप थोड़े से पैसे उठाकर उसको होम लोन्स के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रख लीजिए, और 12 महीना 18 महीने के बीच में आकर आप इसको प्रीपेमेंट कर दीजिए और अपने टेनर को कम कर लीजिए। टेनर को उतना ही कम कीजिए जितना आपका सहूलियत हो, इतना भी बहुत ही कम मत कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है कुछ लोगों का कि कल जाकर तकलीफ हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि काफी सालों के बाद बिटिया को फॉरेन भेजना है, तब इंस्टॉलमेंट कम चाहिए, बट उस समय इंस्टॉलमेंट कम नहीं हो सकता है, राइट। एक है प्रीपेमेंट करना सीखना चाहिए कस्टमर्स को। और ये है कि सबको मालूम है, बट फिर भी हम बता सकते हैं इस चीज को कि शुरुआत के 7-8 साल आप सिर्फ इंटरेस्ट ज्यादा भरते हो और प्रिंसिपल कम भरते हो। शुरुआत के 8-9 साल में अगर आपने प्रीपेमेंट कर दिया तो आप फायदेमंद रहोगे। लोन के आखिरी में जब प्रीपेमेंट करते हो उस समय सिर्फ प्रिंसिपल जाता है, इंटरेस्ट नहीं ज्यादा।
तो ज्यादा इट्स नॉट so great, but you should always see that how you can do a prepayment, but you always should take long tenor, smaller, and then reduce by doing prepayment. एक चीज ये करना चाहिए। दूसरा है कि मकान को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर 3 साल 4 साल में पेंटिंग, रेनोवेशन, इसके लिए बेहिचक अपने पैसा उसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या उसी बैंक में जाइए जिनसे आपका रिश्ता है और वहीं से लोन उठाइए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप रहेगा, आपने प्रीपेमेंट किया, आपको रेट में भी फायदा मिलेगा, सब कुछ इजी जाएगा, डॉक्यूमेंट सब कुछ रहेगा और प्रॉपर्टी को मेंटेन कीजिएगा उस चीज को, राइट। और इंस्टॉलमेंट बराबर भरिए, इंस्टॉलमेंट बराबर भरेंगे तो 10 साल के बाद आप जब आपको और बड़ा मकान बनाना है या तो आपको और कुछ घर पे रिक्वायरमेंट होगी तो आप आजकल टॉप अप बोलते हैं, मतलब पर्सनल लोन ही जैसा है, तो आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे और ज्यादा मिल जाएंगे, राइट। आई थिंक दीज आर द सम ऑफ द क्विक थिंग्स आई वुड से द कस्टमर शुड डू in terms of managing his financials. Right, right, sir. That's very important. So we have broadly covered all the point. Just to add one to it, कि लोन ओरिजिनेशन के टाइम पे नेगोशिएट कीजिए अपना बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, तो आप प्रोसेसिंग फी या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कंसेशन करवा सकते हैं, बात जरूर कीजिए। ये तो करते ही होंगे कस्टमर्स। So that is one point. Rest तो आपने बताया सर, इनकम टैक्स में बेनिफिट है, लोन टेनर कम लेना, पार्ट प्रीपेमेंट, so all those factors are there. So great सर, हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे शुड नो दिस एंड नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड सिंस आई नो कि सर आप वर्चुअल स्किल के अंडर लर्निंग मॉड्यूल्स आपने डेवलप किए हैं विच आर गुड, विच इज अ गुड डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो जस्ट वांटेड टू नो कि क्या कस्टमर सेंट्रिक भी हमारे पास कुछ मॉड्यूल है जिसको अगर कस्टमर गो थ्रू करे तो उनको अवेयरनेस मिल जाए, या कुछ ऐसा डेवलप करने का प्रोग्राम है अगर अभी तक नहीं किए हैं सर? ये मतलब ये दिल की बात आपने कर दिया। मेरे हिसाब से इसी महीने में हमें एक वेबिनार करने का प्लान है जहाँ पे कस्टमर जितने हाउसिंग लोन कस्टमर्स हैं, सभी हाउसिंग लोन कस्टमर्स के जितने FAQs हैं उसको हम एड्रेस करना चाहेंगे, राइट। और उसके बेसिस पे हम मॉड्यूल बनाकर हमारे प्लेटफॉर्म पे डालना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हर कस्टमर, हम ये नहीं यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट बनाकर बेचने का मतलब पैसा का सिर्फ ये इच्छा नहीं है। हमें एजुकेट करना है कस्टमर्स को। छोटे से अमाउंट पे अगर वो सीख लें, 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूरा चीज सीख लें, उनके लिए बहुत फायदा होगा। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक्स को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप एक समझदार और knowledgeable person will speak. Correct. And they also will be responsible, and you'll have the transaction will become relationship and you'll start enjoying this part of it. तो ये मेरा immediate काम है, करने वाला हूँ, शायद हम दोनों मिलकर ही करने वाले हैं इस चीज को, right? आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। आज के तारीख में अगर कस्टमर चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट क्या होता है, लीगल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। हमने ये मॉड्यूल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कार्यकर्ताओं को सिखाने के लिए बनाया गया, बट मुझे लगता है कि ये कस्टमर्स को भी अगर कर लें तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटी है, 500 रुपए, कुछ 700 रुपए, बहुत छोटा है। मैं एनकरेज करूंगा कि हर कस्टमर जो है उनको मालूम होना चाहिए। जैसे हर भारत के सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन जानना जरूरी है, राइट? तो उस तरह से अगर आपने लोन लिया, 30 साल लिया, इज योर वाइफ, राइट? वुड यू नॉट लाइक टू नो अबाउट योर वाइफ, राइट? So home loan is your wife, so you better know about her, and all the modules हमने जो बनाया है वो इनके लिए बहुत होगा। In fact, I would suggest that ये हमें प्रमोट करना चाहिए। आपने सही डायरेक्शंस पे जा रहे हैं आप। Right, and sir. Let's do a webinar, हम कर सकते हैं। Yes, sir. So I take it as customer awareness initiative, जो webinars आपने बोला, तो which is a win-win situation for customers as well as the financial institutions. Because I have also been to both sides of it, कि अगर एज अ बैंकर मुझे कस्टमर मिलता है जिसको कि पता है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है, तो मेरा भी काफी सारा पेन कम हो जाता है, मुझे उतना उनको समझाना नहीं पड़ता। एंड फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मुझे पहले से पता है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे कोई बीच में बेवकूफ नहीं बना सकता या राइड पे नहीं ले सकता। एंड एज यू राइटली सेड कि लोग आजकल 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का लोन भी लेते हैं,
तो उसमें अगर एक नॉमिनल अमाउंट का खर्चा 1000-2000 का होता है, बिकॉज आई हैव सीन योर मॉड्यूल्स, और एज यू राइटली सेड वो 500-600 रुपए से स्टार्ट होते हैं, तो उनको देखना चाहिए. सो फॉर अवर व्यूअर्स, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक डाल रहे हैं जहां से आप ये मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं. जस्ट गो थ्रू इट एंड टेक इट फॉरवर्ड अगर आपको अच्छा लगता है तो. सो ग्रेट सर. सो ऑल्दो आपने बहुत कुछ बता दिया, हमको बहुत ज्ञान दिया है, बट हमारे एक शो की परंपरा है सर, लास्ट में हम अपने गेस्ट से जरूर पूछते हैं एनी पार्टिंग वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर अवर व्यूअर्स, जो आप बताना चाहें सर. 2-3 पॉइंट्स. मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ एज अ होम लोन कस्टमर, मैंने जो प्रैक्टिस किया वही चीज मैं शेयर करूंगा, और जो मैंने अपने कलेक्शंस की जिंदगी में देखी है, हाउसिंग लोन कलेक्शन जिंदगी में जो कस्टमर के साथ देखा है वो, और सेल्स में देखा है मैंने, तो ये मेरा एक बड़ा रिक्वेस्ट है कि पाँव उतना ही फैलाइए जितना चादर हो, साइज हो, उससे ज्यादा मत कीजिएगा. फर्स्ट, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सेकेंड, आप हर चीज जब जो भी साइन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसको समझ कर कीजिएगा, या ना. आप ऐसा कुछ साइन मत कीजिएगा जिससे आपको समझ में नहीं आता क्या किए हैं. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इनकम और लायबिलिटीज की एस्टिमेट करना चालू कर दीजिए. अपना घर का एक्सपेंसेस और इनकम लिखना चालू कर दिया. आपके इनकम सोर्स बहुत हैं तो शायद एक पेज जरूरत नहीं पड़ेगा, 10 पेज जरूरत पड़ेंगे, बट अगर इनकम सोर्सेस 3-4 ही हैं तो छोटी सी जगह में एक साइड लेफ्ट साइड में आ जाएगी और एक्सपेंसेस साइड राइट साइड में आप लिखते जा सकते हैं, और एक अच्छा आदत बन जाएगा घर पे. जब लक्ष्मी को पूजा करते हैं तो लक्ष्मी भी रहती है घर पे, राइट? तो आई थिंक दिस व्हाट इज इट. Lastly, I would say that loan, it's your credibility is very important, right? और credibility तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, और समय किसको कौन कैसे किसको समय देता है कि नहीं देता मालूम नहीं, तो समझ कर कीजिएगा, right? That's the only thing I would like to leave behind the thought process. But I would say that today every graduate who gets into a job after 3rd year or 4th year, I think he should go ahead and buy a property. बहुत financial discipline आ जाएगी, right? If she's a girl, girls लेना चाहिए. As a spinster, they should also buy, and a boy also should buy. Now, it's nothing wrong. Even when they get married, then they can decide कि दोनों बेचकर 2 bedroom अलग से लेना है क्या, right? But individually also they should have the, this decision of buying. Right, sir. So thank you very much, sir. So it was a very insightful session, I must say. काफी कुछ जानने को मिला, and practical knowledge, practical points is what we discussed about, because theoretically क्या process है, कैसे करना है, EMI क्या होता है, more or less सबको पता है, but जो common FAQs customers के mind में रहते हैं, ये शो पर्पस यही था शो करने का कि उस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर पाए, एंड आई थिंक वो आपने काफी सारे इंसाइट्स दिए हैं उसमें. It's a 1 hour session which we have spent, close to 1 hour what we have spent it. So thank you very much for your time. It's always a pleasure interacting with you, and a learning experience, needless to say. Thank you very much, sir. Thank you, Lalit. Thank you. God bless you. Thanks a lot. Okay, sir. Thank you.